Hello everyone, once again welcome back to my class, and as you all know that we are covering chapter number 1 of civics, which is the Indian Constitution, and we have almost covered all the features of Indian Constitution till date. हमने maximum features Indian Constitution के पढ़ लिए हैं, and for today we are going to have the last two main features of Indian Constitution in this lecture. So the next feature of Indian Constitution, that is feature number 4, is fundamental rights. Okay, so this would be the fourth feature of Indian Constitution, and as I have already told you that in order to safeguard our interest, in order to protect us from all the kind of dominance, misuse of authority, or even dominance of majority on minority, and ill treatment, and as well as misbehavior or any such kind of activities which is against the Constitution, the Constitution has granted us with this fundamental rights. These fundamental rights are also called as the conscience of Indian Constitution. Conscience, it is called as the conscience of Indian Constitution. What does conscience means? Conscience का मतलब होता है अंतरात्मा, यानी कि आत्मा या अंतरात्मा कह सकते हैं. जो फंडामेंटल राइट्स है इसको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया, एंड इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. In the previous lecture I have already told you that we have borrowed so many things from the rest of the world's constitution. हमारे जो constitution assembly के member थे, they have gone through so many constitution of the world. They had read and studied all the constitution thoroughly and opted all those points and features that they find suitable for their nation. उन्होंने हर वो features को पढ़ा और देखा. बहुत से देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, समझा गया, स्पेशली बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ही हैड गॉन थ्रू ऑलमोस्ट 50 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू फ्रेम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड so it is also called as the bag of borrowings. If you remember in the previous lecture I have already told you that our constitution is also regarded as the bag of borrowings. What does the word borrowing means? Borrowing का मतलब है लेना, उधार लेना किसी से. तो इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी बहुत से आइडियाज़, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सी चीज़ें दूसरे देश के, विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, अडॉप्ट की गई है. एंड वन ऑफ दिस इज़ फंडामेंटल राइट विच हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. USA के संविधान से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया, मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट को लिया गया. एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को, क्योंकि ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों को हर प्रकार के शोषण से, हर प्रकार के इल ट्रीटमेंट से, किसी भी तरीके के डोमिनेंस से हर तरीके से रक्षा करने का काम करते हैं. It consists of 6 basic fundamental rights. 6 rights are there. इसमें 6 अधिकार आते हैं, और ये 6 के 6 अधिकार हम सिटीजन्स को सेफगार्ड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी किसी भी तरीके की अथॉरिटी को मिसयूज़ करने से बचाने के लिए बनाए गए हैं. And as you all know that we were the part of colonial government, colonial dominance for so longer period of time, and we had gone through all such things, and we got to know that there was nothing left for us to speak about. Means कि हमने जो colonial dominance अपने ऊपर सहा, झेला, जो भारतीय थे उस वक्त के, उन्होंने जो colonial government थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार जो हमारे ऊपर शासन कर रही थी, उसने हमारा कितने प्रकार से उत्पीड़न किया, उनकी ट्राइनी जो थी उसको हम इंडियंस ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. एंड दे क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स of the nationalist, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. So when the national struggle were going on, when the rebellions or the revolutionaries were moving towards the
movement and heading towards the way of independent India, they had a kind of planning and imagination into their minds, you know it well. उनके माइंड में बहुत से इमेजिनेशन, बहुत सी प्लानिंग चल रही थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इमेजिनेशन एंड प्लानिंग उनको ये चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि जो ब्रिटिश शासन उन पर राज किया, दैट वाज completely against the freedom and liberty of the Indians, and at the same time whatever the kind of right they got, means the colonial government got, they even had misused it. उन्होंने उसका misuse भी किया, गलत उपयोग किया, and for that reason ये जो भारतीय थे वो बहुत निश्चिंत थे और एक इस चीज़ को लेके बहुत सर्टेन थे कि जो भी नया देश और उसका संविधान बनेगा, जब स्वतंत्र भारत होगा, तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो रिटन फॉर्म में होंगे, एंड एट द सेम टाइम फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट नेशन देयर हैज़ टू बी सम राइट्स. लोगों के, नागरिकों के भलाई के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ राइट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है. वो राइट्स जो उनको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की ट्राइनी से, किसी भी तरह के मिसयूज से, किसी भी तरीके के डोमिनेंस से बचाएगा. बिकॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड देयर वर नो सच राइट्स फॉर द इंडियंस, एंड दैट्स व्हाई दे हैड नो से इन द गवर्नमेंट और द मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट. But after gone through such a long period of experience and the tyranny of the British colonial government, they understood that there has to be some rights फॉर द सेक ऑफ द सिटीज़न, फॉर द सेफगार्ड ऑफ द सिटीज़न. तो सबके माइंड में ये चीज़ क्लियर थी, जब एक स्वतंत्र भारत बनेगा तो स्वतंत्र भारत का जो एक रंग रूप आकार होगा वो उसके जनता के फेवर में होगा. जनता की ट्राइनी, उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, उन पर डोमिनेंस नहीं थोपा जाएगा. उनकी कोई भी जो लीडर्स आएंगे, जिनको भी अथॉरिटी मिलेगी, वो अपने पावर को मिसयूज़ नहीं करेंगे. सो दीज वर सम बेसिक आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन दैट ऑल गॉन थ्रू द माइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरीज एंड इवन द लीडर्स जिन्होंने इंडिपेंडेंस हमें दिलाई. And fundamental rights therefore protect citizen against arbitrary and absolute exercise of power by the state. What does the word arbitrary means? Arbitrary का मतलब होता है, this is the new word for you, arbitrary. It means you can say that self-willed. Self-willed का मतलब होता है मनमाना. तो सरकार कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट ब्रिटिश की रही हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, देयर माइट बी सम चांसेस दैट इन द कमिंग फ्यूचर whomsoever will come in the power, they might misuse their power. वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकते हैं, उसका गलत यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सिटीजन्स के फेवर में उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा. तो उनके इसी आर्बिट्री पावर को, इसी एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण. तो जब सरकार पूर्ण तरह से सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है, सेल्फ विज्ड हो जाती है, यानी मनमाना अधिकार जताने लगती है, मनमानी करने लगती है, तो इस तरीके के एडवर्स सिचुएशन से बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अदर इंडिविजुअल्स ऑल्सो. अब ये जो राइट्स की बात हुई, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज़ हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था, वी हैड गॉन थ्रू अ न्यू वर्ड स्टेट. यहाँ पर स्टेट का मतलब हमने जाना था कि ये शब्द जो है स्टेट, इसका मतलब राज्य न होकर राष्ट्र से है. तो जब कभी भी ये वर्ड आएगा आपके स्टेट में, मतलब कि ये स्टेट शब्द अगर आ रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेट का मतलब राज्य से ना होकर भारत राष्ट्र से है. तो राष्ट्र की जो भी सरकार होगी वो अपने पावर को मिसयूज़ ना करे, उसका गलत यूटिलाइजेशन ना करे, एंड फॉर दैट सेक फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया. प्लस नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट एनी अदर इंडिविजुअल्स. इसका क्या मतलब है? कई बार एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, उनसे उनके राइट्स को छीनता है, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, सप्रेस करने की कोशिश करता है. सो इन बोथ द केसेस, वेदर इट इज़ अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेट और अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल टूवर्ड्स एनी अदर इंडिविजुअल्स, दोनों के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम फंडामेंटल राइट्स करेगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट फंडामेंटल राइट. वन इज राइट टू इक्वालिटी. Right to equality. Equality, as the name suggests, equal status, equal treatment and equal well-being. Right? So equal का मतलब है समानता. It means that all persons are equal before the law. It means that all the persons are equal before the law
means whether it is the president of a nation or a normal people of a nation, they would be treated equally in the eye of law if they commit any such kind of mistake that is against the constitution. Means there is no demarcation, no separation between the presidential or the PM's power and the power of an ordinary person. कानून के सामने समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप जिस प्रकार की आपके जैसे एक्शंस होंगे उनके बेसिस पर लॉ आपको ट्रीट करेगा, देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या फिर कोई आम नागरिक हो। दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, एज एट द सेम टाइम लॉज से इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, यानी जो कानून है, जो नियम कानून लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स के अंदर में हर किसी को प्रोटेक्शन मिलेगा, हर किसी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाएगा। एंड इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड against on the basis of whether race, religion, caste, gender, culture or any other thing, यानी कि कोई भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके भाषा या उसके पहनावे के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दैट इज राइट टू इक्वलिटी सेज एंड every person has access to all the public places. What are public places? Public places are those places which are open for all, like playgrounds, parks, hospitals, cinema halls, schools. So these are public places which are open for all, so that everybody can go through that places and utilize the kind of facilities available there. तो जितने भी इस तरीके के public places हैं वो सभी के लिए खुले रहेंगे, किसी का भी आना या जाना वर्जित नहीं होगा। हर किसी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म जाति समुदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, whatever the kind of the fact it is, but that person will not be deprived of any such kind of राइट्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। हर किसी को समानता का अधिकार मिलेगा, कानून के सामने समानता, कानून से एक बराबर का प्रोटेक्शन। एट द सेम टाइम जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनका यूज़ करने की आज़ादी मिलेगी एंड अलॉन्ग विद दैट किसी भी धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको कहा गया समानता का अधिकार। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट against anyone in the matters of employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. So basically what does it says? It is saying that कि state, इसी state की बात की गई, जो भी राष्ट्र होगा, वहाँ की जो सरकार होगी, वो किसी भी व्यक्ति के साथ एम्प्लॉयमेंट के समय जब उसको रोजगार मिल रहा होगा या रोजगार देने की संभावनाएं आएंगी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, इक्वल ट्रीटमेंट के साथ उसको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। कुछ एक्सेप्शन है इसके, कुछ अपवाद हैं, आने वाले चैप्टर्स में आप इनके बारे में बहुत क्लियरली एंड थॉरली पढ़ने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की प्रथा चलती थी जिसमें जो हरिजन या दलित वर्ग के लोग होते थे उनको टेम्पल एंट्री बैन थी, उनको कॉमन वेल से पानी लेने नहीं दिया जाता था। पीपल डोंट अलाउ देम टू एंटर इनटू देयर हाउसेज, इनटू टेम्पल्स टू टेक वाटर और टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल एंड टू गो टू एनी सच पब्लिक प्लेसेस विच आर फुल ऑफ हाई कास्ट ऑफ पीपल्स। सो दे वर कम्प्लीटली एबलिस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड ऑन सच ग्राउंड्स। तो उनको टच नहीं किया जाता था। अनटचेबिलिटी सोसाइटी में बहुत एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ इक्वालिटी, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत समानता के अधिकार के तहत, राइट टू इक्वालिटी के तहत इस छुआछूत की प्रथा को भी बैन कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम। सो एज द नेम सजेस्ट फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है आज़ादी, यानी आपको आज़ादी रहेगी, आप पर किसी भी प्रकार का रोकथाम नहीं लगाया जाएगा। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, the right to move freely and reside in any part of the country and the right to practice any profession, occupation or business। इसका मतलब है आपको अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी मिलेगी, यानी आपको आपके मन में जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको आप व्यक्त कर सकेंगे, इसकी आपको आज़ादी है। अपने विचारों को सबके सामने रिप्रेजेंट कर सकेंगे, बोलने की आज़ादी रहेगी, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी रहेगी। उसके साथ साथ आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना संगठन, अपना एसोसिएशन भी फ्रीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड राइट टू मूव फ्रीली, आप पूरे देश में किसी भी हिस्से में फ्री होकर, स्वतंत्र होकर आ और
जा सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं। पहले ये कश्मीर के केस में नहीं था। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द मैटर, अगर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा तो धारा 370 हटा दी गई। पहले क्या था, धारा 370 जब लगी थी तो ये राइट्स कश्मीर को छोड़ के भारत के बाकी हिस्सों में अप्लाई होता था। अब 370 आर्टिकल जब हटा दिया गया है तो ये हर किसी पर अप्लाई होगा, यानी ऑल ओवर इंडिया यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर, यू आर फ्री टू रिसाइड एनीवेयर। रिसाइड का मतलब है कहीं पर भी ठहरना या रुकना। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं और अपने मन का कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई रोक आपको नहीं होगी। यू विल गेट कंप्लीट फ्रीडम अंडर दिस राइट टू फ्रीडम। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, वही जिसकी हमने बात की, सप्रेशन, डोमिनेंस, ट्राइनी। सो दीज आर सम अदर वर्ड्स विच कैन एक्सप्लेन एंड विच कैन डिफाइन द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो किसी भी प्रकार का जो शोषण होता है किसी भी वर्ग के द्वारा किसी दूसरे वर्ग का, या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी भी लीगल अथॉरिटी या पावरफुल अथॉरिटी के द्वारा किसी इंडिविजुअल का या किसी अदर पर्सन का, तो किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, तो उसके खिलाफ भी अधिकार दिया गया है। The Constitution prohibits human trafficking, forced labor and employment of children under 18 years of age. What does the word human trafficking means? Human trafficking का मतलब है मानव तस्करी। मानव तस्करी में या तो ह्यूमन बींग्स को या फिर उनके बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है इलीगल तरीके से। द प्रैक्टिस ऑफ इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, इट रिफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स, पर्टिकुलरली विमेन एंड चिल्ड्रन। तो हम इसको हिंदी में मानव तस्करी कहते हैं, यानी जब ह्यूमन बींग्स का व्यापार हो, मानव को खरीदा और बेचा जाए। अगर आपको याद हो, अफ्रीका में स्लेव ट्रेड चलता था जिसमें अफ्रीका से गुलाम खरीद कर ले आया करते थे और दूसरे देशों में उनको महंगे दामों पर बेचा जाता था। इसी तरीके से जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी है, एंड इसका स्पेशली जो शिकार होते हैं वो या तो विमेन्स होती हैं या फिर बच्चे होते हैं। तो किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सेफ गार्ड करने का अधिकार है, यानी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। इनमें इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उनको इस राइट के तहत सज़ा दी जाएगी। उसके साथ साथ ये कहा गया कि फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी होती है, पहले बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। आज भी बहुत से एरियाज़ में, बहुत से टाउन्स या विलेजेस में इट एग्जिस्ट इवन टुडे। सो फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिला, यानी कि शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ अधिकार की अगर सोसाइटी में किसी भी वर्ग का किसी दूसरे वर्ग के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, लीगल बॉडी के द्वारा, स्टेट के द्वारा अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सप्रेशन या डोमिनेशन हो रहा है, सो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अंडर दिस लॉ। एंड एम्प्लॉयमेंट, आपने सुना होगा चाइल्ड लेबर के बारे में। जब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, दैट कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, मजदूरी करवाना, उसको बाल मजदूरी कहा जाता है, एंड दैट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एज वेल। मानवता के भी खिलाफ है और संविधान में भी इसका पूरा विरोध किया गया और इसके अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए गए। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर विश एंड विल, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, योर बिलीफ एंड फेथ, यू आर फ्री टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन दैट एग्जिस्ट इन द नेशन। देश में आप फ्री हैं किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का अनुसरण करने के लिए। जिस भी धर्म में आपको आस्था है, विश्वास है, यू आर कम्प्लीटली फ्री टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रिलीजन, देयर बिलीव्स, देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। नो वन वुड
deprived you against such right. आपसे आपका ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता. It says religious freedom is provided to all citizens. हर नागरिकों को धर्म का या धार्मिक आज़ादी या स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. यानी कि आप फ्री हैं, जिस भी धर्म का अनुसरण करना चाहें, फॉलो करना चाहें आप फॉलो कर सकते हैं, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको इवन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड एट द सेम टाइम उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं. इसमें कोई मनाही नहीं है, न ही आपको कोई ऐसा करने से रोक सकता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट under the category of fundamental rights, right number 4, the right to freedom of religion, यानी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार. आप जिस भी धर्म में आस्था या विश्वास रखते हैं आप उसका पूरी तरीके से पालन कर सकते हैं, उसको और बढ़ावा दे सकते हैं, पॉपुलराइज कर सकते हैं, उसमें और मेंबर्स को शामिल कर सकते हैं अगर वो अपनी इच्छा रखते हैं तो. सो दैट इज़ द राइट of freedom of religion, right to freedom of religion. Now the next right is cultural and educational rights. Cultural and educational rights. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको पूरा अधिकार है और संस्कृति के भी क्षेत्र में आपको अधिकार दिया गया है. इट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, those who are less in number, you know about them, these are called as minorities. So all the minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. It means कि जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, जिनकी भी आबादी हमारे यहाँ कम है, जैसे जैन धर्म के लोग हमारे यहाँ कम हैं, बुद्ध धर्म के लोग हमारे यहाँ कम है, तो ये माइनॉरिटीज़ में कहे जाएंगे. जिनकी भी आबादी कम है, ये धर्म के आधार पर हो गया, या फिर भाषा के आधार पर भी कुछ अलग समुदाय होते हैं. लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई आधार पर. तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, वेदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, एनीथिंग, क्षेत्र के आधार पर जो भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, भाषाई ग्रुप हैं या फिर धार्मिक ग्रुप हैं, समुदाय हैं, वो सब फ्री हैं अपने अकॉर्डिंगली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने के लिए. मीन्स द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज प्रोपोगेटेड बाय देयर एजुकेशनल लीडर्स एंड देयर स्पिरिचुअल गाइड, दे आर फ्री टू प्रमोट दोज एजुकेशन एंड देयर बिलीव्स थ्रू सेटिंग अप वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नो वन कैन डिप्राइव देम फ्रॉम सेटिंग अप दीज इंस्टीट्यूशन. वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उनके धर्म, जाति या फिर भाषा के अनुसार जो भी शिक्षा दी जाती है उसको देने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस बना सकते हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए अपने कल्चर, उसके साथ साथ हर धर्म, जाति, समुदाय के लोगों का अपना खुद का कल्चर होता है, संस्कृति होती है. एंड फॉर द सेक ऑफ कल्चर टू दे कैन फॉर्म देयर ओन कल्चरल सोसाइटीज, देयर ओन एसोसिएशन एंड वट एवर द काइंड ऑफ थिंग दे फाइंड सूटेबल फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर कल्चर. जिसको अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो भी मेथड सूटेबल लगे वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कर सकते हैं, किसी विजिटिंग एरिया का निर्माण कर सकते हैं. जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर बनता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद बनता है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं. सो दीज आर सम इंस्टीट्यूशन जहाँ पर धर्म की प्रैक्टिस की जाती है. मीन्स पीपल गो देयर फॉर द सेक ऑफ देयर कंसाइंस, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपने बिलीफ को और बढ़ाने के लिए जाते हैं. तो ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो उनके कल्चर को और प्रोपोगेट कर सके वो उसको सेटअप कर सकते हैं. साथ ही साथ अपने धर्म, जाति और भाषा के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी लगा सकते हैं जो कि उनके पर्टिकुलर कल्चर और ट्रेडिशन को, उनके एजुकेशनल टीचिंग्स को और आगे बढ़ाएगा और प्रमोट करके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेगा. नाउ द लास्ट एंड द सिक्स्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. संवैधानिक सुरक्षा का उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है? ये आपके इन 5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और अधिकार आपको दिया गया, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नंबर 6, राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है उपचार। जब हम बीमार होते हैं तो हम उपचार करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं। इसी तरीके से when any person would be deprived of all the above 5 rights, he would safeguard his or her right by the use of right to constitutional remedies। संवैधानिक सुरक्षा का उपचार या संवैधानिक किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर आपसे छीने जा रहे हैं तो उसके तहत आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मिले हैं, संवैधानिक उपचार मिला है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके तहत कहा गया दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि स्टेट ने उनके इन 5 अधिकारों में से किसी का भी या फिर 5 के 5 अधिकारों का हनन किया है, उसको वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फ्री टू मूव टू द कोर्ट। वो कोर्ट जाने के लिए फ्री है, कोर्ट में जाकर वो अप्लाई कर सकता है, अपील दे सकता है, गुहार लगा सकता है अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। जो भी उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, फॉर द सेक ऑफ दैट इनजस्टिस, उसको रेक्टिफाई करने के लिए या करेक्ट करने के लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दिया गया, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इट मीन्स कि इफ़ यू और एनी सच पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफ सच राइट बाय द स्टेट, अगर राज्य ने, राष्ट्र ने उनसे ऐसा कोई भी अधिकार अगर छीना है तो वो कोर्ट तक जा सकते हैं, कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं और अपने राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ रिगार्डेड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा कहा गया। And if you look at book that is on page number 14, there are some situations given below. You have to read these situations and have to find out that which fundamental right is violated there. Like for example, if a 13-year-old child is working in a factory manufacturing carpet, 13 साल का बच्चा अगर किसी कारपेट बनाने वाली कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा राइट वायलेट किया गया, आपके किस अधिकारों का उल्लंघन किया गया? ये राइट जो आएगा, दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना दैट कम्स अंडर चाइल्ड लेबर, जो कि बैंड है, और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत आएगा। इन द सेम वे देयर आर 3 more situations given in your book. Go through that situation and try to find out that which particular fundamental rights has been violated there. वहाँ पे किस fundamental right का उल्लंघन किया गया है। And now let's move to the 5th feature of Indian Constitution, that is secularism, पंथ निरपेक्ष। Secularism is the 5th feature of Indian Constitution. Secularism, this word has been added in our constitution in 1976 through 42nd amendment. अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। जब हमारा संविधान बना तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती चली गई, नीड्स बढ़ती चली गई, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड डिज़ायर्स, संविधान में संशोधन किए जाने लगे, अलग अलग तरह से चेंजेस किए जाने लगे, एंड उन्हीं चेंजेस को अमेंडमेंट्स कहा जाता है, यानी संविधान में जो सुधार किए गए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड अमेंडमेंट। तो ये जो शब्द है सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, ये 1976 में हुए 42nd अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। व्हाट डज द वर्ड सेज? इट सेज दैट अ स्टेट इज वन इन विच द स्टेट, अ सेकुलर स्टेट वी कैन से इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज पर द स्टेट रिलीजन, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र जो ऑफिशियल तौर पर किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यानी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा कि अगर ये कोई देश है, कोई उसका कोई अपना पर्टिकुलर धर्म है तो वो उसी धर्म को प्रमोट करे, ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड पंथ निरपेक्ष, यानी किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के पक्ष में भारत नहीं रहेगा, न ही उसका संविधान रहेगा। आप जिस भी धर्म जाति समुदाय के हैं, वॉट एवर द काइंड ऑफ योर रिलीजन इज इट इज़ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड you belongs to, you are completely free to follow your religion or somebody else's religion. Nobody can
deprived you from such right and this is what we call secularism। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जो किसी धर्म का पक्षपात नहीं करता, किसी पंथ का पक्षपात नहीं करता, फ्री है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली जिस धर्म को पालन करना चाहे, जिसका फॉलो करना चाहे वो फ्री है, उसको फॉलो कर सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेकुलरिज्म एंड अबाउट सेकुलरिज्म यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। दैट होल चैप्टर इज डिपेंड ऑन दिस टॉपिक सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, जिसमें आप पढ़ेंगे व्हाट डज इट मीन। मीनिंग तो मैंने अभी भी बता दी, आप इसके ब्रॉड टर्म में मीनिंग समझेंगे और आप ये समझेंगे कि जब सेकुलरिज्म को लोग अवॉइड करके ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम you have understood that the way in which a country's history, we can say, often determines the kind of constitution that a country accepts for itself. So it is basically your experience, जिस देश का जिस प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं, वहाँ का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। नेपाल की बात की जाए, लोगों का वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था दैट वाज अ मोनार्की बेस्ड एक्सपीरियंस एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने अडॉप्ट किया कि अब जब देश आज़ाद होगा तो वो डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। इन द सेम वे इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी औपनिवेशिक सरकार। जब एक कोई ताकतवर देश अपने से कमज़ोर देश को टेक ओवर कर लेता है, उसको अपने कंट्रोल में करता है, दैट इज़ वॉट वी कॉल कॉलोनाइजेशन। एंड वी वर वंस इन अ टाइम हम ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं, तो हमने उसमें भी एक्सपीरियंस किया कि that Indians were not satisfied with the kind of government that were prevailing that time। उस वक्त की जो सरकार थी, इंडियंस उससे सेटिस्फाइड नहीं थे एंड दैट्स वाई दे डायरेक्टेड देयर एम एंड गोल टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंट नेशन एंड टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपके देश का संविधान किस प्रकार का होगा, देश का पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का होगा, वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस और आपके देश की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस और हिस्ट्री इफ़ इट इज़ नॉट गुड, इफ़ इट इज़ नॉट satisfactory, it is not according to the needs and desires of the citizens, तो वो चेंज करते हैं आने वाले समय में उसको। तो आज जो भारत है, ये भारत कहीं ना कहीं पास्ट में हुए बुरे एक्सपीरियंस के वजह से आज ऐसा बना है एंड पीपल टुडे or nowadays are completely satisfied with the form of government that exists in India. So it is the kind of experience or the history that a country had gone through would help to decide the coming kind of system or the constitution that particular country will adopt for itself। कोई भी देश अपने लिए किस प्रकार का संविधान अडॉप्ट करेगा वो उसी से पता चलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर मैनी ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पर आपको अमेंडमेंट की बात बताई, इसका क्या मतलब है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है कि एक बार लिख दिया गया द काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैज़ बीन मैंशनड वन टाइम, अब वो चेंज नहीं होंगे। दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिज़ायर ऑफ टाइम। जैसे जैसे नए नए कंसर्न्स आएंगे, नए मुद्दे, नए मैटर आएंगे, जैसी डिमांड होगी, जैसी ज़रूरत होगी, उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार के भी प्रावधान बनाए गए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा फीचर माना जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप समय रहते और समय के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बहुत से अमेंडमेंट्स से होकर गुजरा। उन्हीं में से एक था 1976 में हुआ, जिसमें सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष शब्द आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जो भारत को ये डिफाइन करता है दैट दिस पर्टिकुलर स्टेट वुड नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये राष्ट्र जो है किसी पर्टिकुलर धर्म को फेवर नहीं करेगा। एंड you will even come to know about more such things, more about fundamental rights and the kind of articles under which they come and many more things in the upcoming classes and upcoming chapters too। and this is for now। अभी आपके क्लास के अकॉर्डिंगली इतना कंटेंट है and this is enough for grade 8। and अभी आप आने वाले क्लासेस में कुछ तो आने वाले चैप्टर्स में भी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लाइक सेकुलरिज्म के बारे में आप ढंग से और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड अलॉन्ग विद दीज फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं तो हमारे कुछ दायित्व भी बनाए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं हमें। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारी मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति निभाने होते हैं। विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।